Pregnancy is itself a very wonderful situation and wonderful feeling. बट इस प्रेगनेंसी में हमें स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं और हम अपने स्किन प्रॉब्लम्स को लेके बहुत कंसर्न होते हैं। तो हाय, आई एम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता और आज हम बात करेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी में कौन से सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अपने स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हमें बिल्कुल ही नो कहना चाहिए, बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट आई एम नॉट अ गायनोकोलॉजिस्ट, बट during my pregnancy I have done this research a lot because I was so concerned regarding this topic. Just I don't want to put anything which is harmful for me and my baby and for my situation. So I have done so many research and so many lots of studies that which things are good, which is going to be a very safe ingredient for skin care, and which skin care is not safe. So I have done so many research and went through all this conclusion. So I am sharing this to you. So I am telling you that अगर आपको कोई भी स्किन केयर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कंफर्म ना हो, स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत चीज़ें कंफ्यूजन हो क्रिएट हो रही हो और परेशानी हो, आप कंफर्म ना हो, तो फर्स्ट थिंग कि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को ज़रूर पूछो, ज़रूर समझो। तो चलिए मैं जितना आपको हेल्प कर सकती हूँ और जितना मैंने रिसर्च किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो जो मैंने चार्ट बना के रखी हुई है, तो हम अगर इंग्रेडिएंट्स डिटेल्स की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो अवॉइडिंग इंग्रेडिएंट्स हैं अगर, तो सबसे पहला आता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में रेटिनॉल यूज़ करना प्रेगनेंसी के लिए बहुत गलत है, क्योंकि पोटेंशियली रेटिनॉल इज़ नोन दैट इट काउज बर्थ इफेक्ट। सो रेटिनॉल को तो आप वैसे ही अवॉइड करोगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है एनी ब्राइटनिंग एजेंट दैट मे बी हाइड्रोक्विनोन, अल्फा आर्बिटिन. So this kind of a brightening, glutathione, this kind of a brightening agent may harm your pregnancy and pregnancy structure. The third thing is salicylic acid in your ingredient list, and VHA, bilowaric acid, benzoyl peroxide. This all things should be avoided anyhow. So let's talk about some preservative factors. So preservative factors में अगर हम स्विच करते हैं तो anything which is formaldehyde or formaldehyde derivatives like methyl isothiazinol, and the second one is diurea. The third one is disodium hydroquinone and the sulfur. This all things should be avoided. So you actually you need read labels. So you need to read your labels very properly during your pregnancy, because if you are going to apply anything and this may cause harm, so you have to be very precautious regarding these things. So the first key ingredient, key advice that आप जब भी अपने इंग्रेडिएंट्स को पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि कौन से इंग्रेडिएंट्स को एनी हाउ अवॉइड करना है और कौन से इंग्रेडिएंट्स सेफ टू यूज़ है। सो पर्टिकुलरली यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज एनीथिंग यू आर गोइंग टू बाई इन योर प्रेगनेंसी फॉर योर स्किन केयर यू हैव टू रीड द लेबल्स। सो चलिए सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स। ऑयल्स कौन कौन से हैं जो हमारे लिए सेफ हैं और अनसेफ हैं। द अनसेफ वन आर सेज, सिट्रोनेला, थाइम, बेसिल, क्यूमिन, जेनिपर एंड रोजमेरी. एंड द useful ones or you can be used are mandarin and nutmeg. So the third topic which came in mind first, that can be color, can be dye our hair in pregnancy. The first thing is that don't
these things may going to harm. The ammonia content in the color is not good for you, your body, and this pregnancy situation. And if you really want to do such things and you really आपको चाहिए कि आपको हेयर कलर करना ही है या आपको ज़रूरी है, तो आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अपने हेयर कलर के लिए सोच सकते हो, बट ऑन लेंथ, नॉट ऑन स्कैल्प एरिया. So try this little things. This may go to benefit you in your situation. And I have some more topics like nail paints. These nail paints are safe to use in pregnancy. So I'm telling you that nail paints are they have so many toxic enamels in it, so stay out of it. And if you really want to switch on, if you really want to apply some nail paints, then the key advice is to use your labels. And I have went through lots of levels of nail paints, and I have some brands like K Beauty. They are using toxic free enamels, and that Disguise Cosmetics, they are also using toxic free enamels. And this Jan and Maiza ZM, and they are forming their nail paints which are actually toxic free. Actually, I went through this whole ingredient details, and they are claimed to be doing such toxic free nail enamels. So you can try those. And after that, some of the people think that कि इन प्रेगनेंसी हमें कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच करना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वैसे ही सेफ होंगे और कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में हमें इतने ही सारे प्रॉब्लम्स हैं. बट द थिंग इज़ दैट, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया जाता है, इनकी प्रिजर्वेटिव एबिलिटी बहुत वीक होती है. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर प्रोन टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर प्रोडक्ट. सो इज दे not always you have to stay away of those products, but be spectacle. आप उनके भी लेबल्स पढ़े और ध्यान दे, और कौन से प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं और आपको एनी हाउ बेनिफिट ही करेंगे, तो आप वैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हैं. बट थिंग्स आर लाइक दिस कि दे आर मोर प्रोन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो stay away out of the, you just the key thing is to read labels. And if you are going to read your labels, and if you are going to be very precautious regarding labels, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आप कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में भी अच्छे प्रोडक्ट्स अपने लिए स्विच कर सकते हैं और चुन सकते हैं. उसके बाद एक और टॉपिक है प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स, उससे कैसे. तो स्ट्रेच मार्क्स इज एक्चुअली आई थिंक इट्स अ जेनेटिकल कंडीशन. तो फिर भी इससे बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे हम बटर्स का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बॉडी बटर्स को यूज़ कर सकते हैं. एक दो अच्छे ब्रांड्स हैं जो बहुत सेफ टू यूज़ हैं, जैसे पाल्मर्स हैं, मॉम्सको हैं, बर्ड्स बीज हैं. ये 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं जो सेफ टू यूज़ हैं इन प्रेगनेंसी. बट अगर आप इनसे फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, देन द बेस्ट वे इज टू यूज़ एनी good cold pressed coconut oil, because I love using this coconut oil in my pregnancy. They are very good actually. They promote healthy cells to your skin, and they actually works on your stretch marks if you are really using them regularly and thoroughly. And actually in pregnancy we have so many conditions, and for that conditions we are not able to use acids or treatment products. So we are so disturbed that what is going to be a beneficial thing. So just talk about some problems in pregnancy. बहुत सारे लोगों को एक्ने प्रॉब्लम्स होते हैं. द एक्नेस आर लाइक a pregnancy best friend for some people, so like me also.
So if you are prone to acne, you are not going to use retinol, you are not going to use azelaic acid. What is the safe ingredients for acne? So you can use lactic acid. Lactic acid is one of the safest product and safest ingredients to be used in pregnancy. So you can, sorry, you can use your lactic acid serums or lactic acid toners in your pregnancy. They are going to help you with your acne. Second thing is melasma or marks on your face. So you can use some DIY techniques for your melasma or your marks. You can use liquorice powder. आप एक वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने एक बेस्ट DIY लिकोराइस पाउडर, नीम पाउडर और ऑरेंज पाउडर का शेयर किया है। तो अगर आप चाहो मैं उसका लिंक आपको डिटेल में डाल दूंगी। तो आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को भी एज ए DIY यूज़ कर सकते हो। लिकोराइस पाउडर बहुत वंडरफुली वर्क करता है आपकी मेलास्मा पे। और आप चाहो तो दूसरा DIY यूज़ कर सकते हो, लिकोराइस पाउडर विथ कर्ड एंड विथ सम ऑरेंज पील पाउडर। इन सब के अलावा अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो या नहीं हो रहा तो आप लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट सीरम्स ले सकते हो। जैसे आप इट्स स्किन की एलाई सीरम को ले सकते हो, वो बहुत वंडरफुली वर्क करता है। और आप विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू बी स्पेक्टिकल अबाउट इट, क्योंकि आप विटामिन सी भी वैसे यूज़ करो जो फ्रूट डेरिवेटिव्स हो। सो आप वैसे विटामिन सी को भी स्विच कर सकते हो। एंड लेट्स कम जंप ऑन वेरी हाईलाइटेड टॉपिक, दैट इज सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए आपको मैं इतने शॉर्ट में आपको समझा तो नहीं सकती, बिकॉज सनस्क्रीन अभी लिटरली दो वेरिएंट्स हैं, सेफ एंड अनसेफ। तो in pregnancy you have to use mineral sunscreen simply, and if you really want to know everything regarding sunscreen, because sunscreen is a major skin product which are going to be used every day in any situation. So if you are very skeptical regarding sunscreen तो आप मेरे एक वीडियो को जरूर देखें, वहाँ पे मैंने सनस्क्रीन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल किया है। तो आप उस वीडियो को विजिट करें और देखें, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगी। तीसरी और एक और बात करें तो वो बात है इची स्किन्स। इची स्किन्स भी बहुत डेवलप होते हैं हमारी प्रेगनेंसी में हमें इची स्किन्स होते हैं। मैंने बहुत झेले हैं ऐसे इची स्किन्स के प्रॉब्लम। तो आप इन इची स्किन से बचने के लिए आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, सिया बटर्स यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉम्स को और पालमर्स के बटर्स, बॉडी बटर्स को यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे बॉडी बटर्स हैं जिन्हें आप अगर लेवल से पढ़ के और अच्छे से समझ के यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप अगर चाहो तो, सॉरी मैंने बना रखा है चार्ट तो मैं उसे देख रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आप अगर चाहो तो आप आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और सिया बटर, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को अपने लिए एक DIY लोशन तैयार करके इसे यूज़ कर सकते हो। बट वी वेरी स्पेक्टिकल रिगार्डिंग दिस थिंग्स। अगर आप ऐसे कोई भी DIYs को यूज़ कर रहे हो तो इन्हें 3 to 4-5 डेज में डिस्कार्ड करके आप नया फॉर्म करोगे, बिकॉज ऑफ no you are not going to develop any microorganism in this product, so they are going to be harmful for you. So और आप अपने इचे स्किन में एक प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हो। वो प्रोडक्ट मुझे बहुत पर्सनली हेल्प किया था और मैं उसे यूज़ कर रही थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। इनफैक्ट मैं अभी भी उसे यूज़ करती हूँ, दैट इज़ हिस्टाकेलामाइन, जिसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ कहीं शेयर कर दूँगी। वो प्रोडक्ट वंडरफुल प्रोडक्ट है इन योर प्रेगनेंसी। सो आई थिंक स्किन केयर और रिलेटेड इश्यूज़ पे मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये वीडियो। अब छोटी सी बात करें कि मेकअप लगाना भी बहुत लोगों को बहुत पसंद है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मेकअप कितने सेफ होते हैं, नहीं सेफ होते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट मेकअप
that are not carrying any retinol, any formaldehyde makeups that are not carrying any kind of benzoyl peroxide. So this kind of makeup is going to be work for you. So actually the thing is this, that you have to read labels ऑल ऑफ द मेकअप्स ऑल्सो. सो आपको मेकअप के ऊपर के भी लेवल्स को पढ़ना है, उसे भी देखना है और समझना है. मोस्ट ऑफ द मेकअप्स में ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, बट स्टिल आपको एक बार ही अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को भी अच्छे से देखना और पढ़ना ज़रूर चाहिए, स्पेशली इन योर pregnancy. So I think this video is quite informative for you. For today, bye bye and take care and do subscribe.